Namaskar, everyone. Welcome you all to the most interesting biology live session. Today, we are going to start a new chapter, and that is biomolecules. All right? Yes? So, what do we actually know about biomolecules? क्या जानते हैं आप biomolecules के बारे में? When you read NCERT, you might feel that it is very complicated, but it is not very complicated. It is very easy, right? There is a flow chart on your screen, you can see now. We will be learning all the things which are mentioned here. ठीक है? Biomolecules. Of course, we have to first know what is the definition of biomolecules. So, whatever molecules which are found in the living organism, in your cell, there are so many molecules, right? In any living organism, there are so many molecules found. All these molecules, all these chemicals are biomolecules. Bio means living, right? Life. So in the living organism, the molecules which you get, that is biomolecule. Now the problem is to classify them, how to learn about them, right? How do we get to know what exactly is present in our cell? So we have different techniques to find out the composition of the chemical, the composition of the biomolecule. Actually, they are made up of what? What are they made up of? So we do different types of analysis. ठीक है? You want to know about the compound molecule? Do molecular analysis. You know that molecules are made up of element, right? Group of elements make what? Compound molecule. So if you want to learn about the element which are making molecule, you need to do elemental analysis. So there are different techniques by which we get to know which molecules are making biomolecule. There are different techniques which help us in knowing which elements are making the compound. So we do analysis. There are several methods to analyze the chemical composition. So what is biomolecule? I hope it is clear. All the chemicals which are found in the living organism, they are biomolecules. How do we get to know about them? How do we study about them? How do we know the structure? All these things we'll get to know by analyzing them. Different techniques are there to analyze them. Okay? So, there are methods to analyze the chemical composition of the biomolecules. ठीक है? What is the method that we will be learning? ठीक है? So, when we complete our analysis, we will get to know that there are small molecules, there are big molecules, there are organic molecules, there are inorganic molecules. So, all these things you are going to learn. All right. So, let us begin with that. Okay. When we do analysis, we will get to know we have carbohydrates, proteins, lipids, fats, nucleic acid, enzyme. All these are what? Found in our body. Since all these are found in living organism, they all will come in the category of biomolecules. Is it clear? है ना? So we will be talking about carbohydrates. हम प्रोटीन्स के बारे में सीखेंगे. लिपिड्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स सब है हमारी बॉडी में. एंजाइम्स, यही तो है बायोमोलिक्यूल्स. So we'll be learning about this. ठीक है? Got it? चलो. So let us begin. You are seeing me, you see yourself, right? You see various living organisms, right? All of us are residing on this beautiful earth. आखिर हम है कहाँ पे? इस अर्थ पे है. अर्थ इज लिविंग और नॉन लिविंग. क्या लगता है आपको? What do you think?
It's living or non-living? To my knowledge, it is non-living. ठीक है, non-living है. तो हमने कुछ स्टडी किया पहले कि हम में क्या है एंड नॉन लिविंग चीजों में क्या है, हम किन से बने हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स किससे बने हैं. सो व्हाट वी गॉट टू नो, यू हैव एनी आइडिया? वी गॉट टू नो दैट वी हैव सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स. हमारे पास वही एलिमेंट है एंड नॉन लिविंग जो चीजें हैं उनके पास भी सेम एलिमेंट है. हम भी उन्हीं एलिमेंट से बने हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी उन्हीं एलिमेंट से बने हैं. जब हमने उनका स्टडी किया, मान लो पत्थर, रॉक, when we did the analysis on the rocks and when we did the analysis on any living tissue, the composition was same. They were made up of same type of element: carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, magnesium. All these things were there in them. Okay, but there was a small difference. In living body, what do you get more? You get more carbon. You get more carbon, you get more hydrogen. If you compare carbon and hydrogen of living and non-living, carbon and hydrogen will be more. In living it will be more. Not only this, even oxygen will be more, nitrogen will be more, sulfur will be more. Chance. These will be more in living than non-living. In NCERT, if you read, you will read that there they have given carbon and hydrogen. Carbon and hydrogen, right? Yes, so when they did the analysis on both living and non-living, what are we learning? जब analysis किया गया living matter का as well as non-living matter का, हमें same elements मिले. Composition दोनों में same ही element मिले. हमने elemental analysis किया. एलिमेंट देख रहे हैं ना, तो कौन सा एनालिसिस किया? एलिमेंटल एनालिसिस किया. पता चला कि दोनों एक तरह के एलिमेंट से बने हैं. ठीक है. सो एक आपका टैबुलर कॉलम दिया है एनसीईआरटी में. परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट जो आपका है वो किस चीज से बना है? एंड ह्यूमन बॉडी और अर्थ क्रस्ट को कंपेयर किया गया. पहला पॉइंट सीख रहे हैं हम, जिसमें हमने नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट और लिविंग ह्यूमन के एलिमेंट को कंपेयर किया. पता चला कि सब एक ही चीज से बना है, लेकिन अभी मैंने कुछ बोला आपको, चॉन्स, CHONS, चॉन्स हम में थोड़ा ज्यादा है, अर्थ क्रस्ट में उनका कॉम्पोजिशन थोड़ा कम है. वेरीफाई कर लो, क्विकली वेरीफाई इट. देखो, हाइड्रोजन 0.14 है अर्थ क्रस्ट में, हमारी बॉडी में 0.5 है. कार्बन 0.03 है, हमारी बॉडी में 18.5 है. ऑक्सीजन 46.6 है अर्थ क्रस्ट में, हमारी बॉडी में 65 है. नाइट्रोजन बहुत कम है, हमारी बॉडी में 3.3 है. सल्फर 0.03 है, हमारी बॉडी में 0.3 है. तो CHONS, चॉन्स हमारी बॉडी में कंपैरेटिवली ज्यादा है देन अर्थ क्रस्ट, नॉन लिविंग मैटर. क्लियर है? तो ये पहला एनालिसिस हमने सीखा कि नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, हम दोनों में ही सेम एलिमेंट्स है, हम में चॉन्स ज्यादा है. इज इट क्लियर? यस. तो इसी तरह अगर हमें कंपाउंड के बारे में जानना था तो हमने कंपाउंड एनालिसिस किया. वी डिड कंपाउंड एनालिसिस. हम जानना चाहते थे कि कौन कौन से कंपाउंड है. कंपाउंड का मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं. जब हमने कंपाउंड एनालिसिस किया, वी गॉट टू नो कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. ये कंपाउंड एनालिसिस से पता चला. क्लियर है? यस.
हाउ टू एनालाइज द केमिकल कॉम्पोजिशन। मैंने बोला कि हमें केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालिसिस करना है, लेकिन हम कैसे करें इसको? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। हाउ डू वी एनालाइज द केमिकल कॉम्पोजिशन? कोई लिविंग दिया, मैंने आपको लिविंग कंटेंट दिया, मान लीजिए आपका लिवर सेल लिविंग है ना, लिवर टिश्यू, या छोड़ो ह्यूमन बीइंग का नहीं लेना तो कोई वेजिटेबल ले लो, प्लांट भी तो लिविंग होते हैं, कोई प्लांट का टिश्यू ले लो, ठीक है, एंड उसके बारे में पढ़ो कि उनमें क्या क्या केमिकल्स है। हाउ डू वी डू दैट? तो उसका आंसर है कि हम उस टिश्यू को लेते हैं, जो भी लिविंग टिश्यू है, हम लिविंग टिश्यू को लेते हैं, फिर क्या करते हैं जल्दी बताओ? यू टेक द लिविंग टिश्यू, उसको हम क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं। वेरी गुड, वी ग्राइंड इट। जैसे मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, तो एक जार लोगे, उस जार में यू विल ग्राइंड इट। उसको मिक्स करने के बाद इसमें ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड डाल के फिर से उसको मिक्स करेंगे। क्या करेंगे? इसको ग्राइंड करेंगे, ठीक है। ग्राइंड करने के बाद यू आर गोना मिक्स इट विथ ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, Cl3 CCOOH, ट्राईक्लोरो 3 क्लोरीन, एसिटिक एसिड CCOOH, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। इससे जब मिक्स कर दोगे ना, पूरा मिक्स करोगे तो एक पेस्ट बन जाएगा। उस पेस्ट को क्या बोलोगे? स्लरी। व्हाट विल यू कॉल दैट पेस्ट एज? यू विल कॉल दैट एज स्लरी। क्या बोल रहे हो? स्लरी। यू आर कॉलिंग इट एज स्लरी, ठीक है। अब इस स्लरी को हम क्या कर रहे हैं? फिल्टर करेंगे। नाउ वो थिक बन गया ना स्लरी, पूरा हमने ग्राइंड कर दिया है, थिक बन गया। अब हम उसको फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए होगा, फिल्टर पेपर जैसा। तो यू कैन टेक एनी फिल्टर पेपर, चीज क्लॉथ। चीज क्लॉथ से क्या करेंगे? उसको फिल्टर करेंगे। पास जो भी आपका स्लरी बना है, उस स्लरी को हम इससे पास करेंगे। जैसे घर में हमारा फिल्ट्रेशन होता है ना, राइस एंड ऑल वी डू फिल्टर, राइट? वी डू फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये जो स्लरी है, हम इसके थ्रू फिल्टर करेंगे। इसमें ऐसे करके उसको पोर करेंगे। वी विल पोर द स्लरी थ्रू द फिल्टर क्लॉथ, चीज क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, ठीक है। अब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द साइज, जो भी छोटे छोटे होंगे, जो डिजोल्व हो गए होंगे, जो छोटे छोटे होंगे, सब कहाँ आ जाएंगे? नीचे। दे विल ऑल कम एट द बॉटम, दे विल ऑल क्रॉस दैट फिल्टर पेपर। एंड कुछ मॉलिक्यूल्स जो डिजोल्व नहीं हुए होंगे, जिनका साइज बड़ा हुआ होगा, जो इस एसिड में डिजोल्व नहीं हुए होंगे, कुछ जो डिजोल्व हो गए होंगे, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में जो डिजोल्व हो गए होंगे, वो नीचे आ जाएंगे। दैट इज द फिल्ट्रेट, है ना। ये फिल्ट्रेट है आपका, फिल्टर होके आ गया। और कुछ होंगे जो ऊपर में ही, दे विल रिमेन ऑन द पेपर, वो फिल्टर पेपर पे रहेंगे। दे विल रिटेन, दे विल गेट रिटेन्ड ऑन द पेपर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेटेंटेट। तो अभी हमको दो चीजें मिली इधर। यहाँ पे आपको जो मिलेगा, आप इसको क्या बोलोगे? क्या नाम दोगे? अरे बाबा बोलो, फिल्ट्रेट। एंड जो रिमेन्स रहेंगे, आपके जो रिमेनिंग चीजें रहेंगी, व्हाट विल यू कॉल देम? बोलो, क्या बोलोगे? रेटेंटेट। शाबाश, रेटेंटेट। चल अब मुझे आप आंसर देना, ठीक है। ये जो बच गए, द रिमेन्स, द रिमेनिंग वंस, व्हाट इज द नेचर? आर दे एसिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल? अगर वो ऊपर बच गए तो ये सॉल्युबल हुए इस एसिड से या नहीं हुए? यस और नो? Insoluble. इनसॉल्युबल। तो इसको हम एक और नाम देते हैं, रेटेंटेट इज आल्सो कॉल्ड एज एसिड इनसॉल्युबल पूल। ये जो बच गया उसको हम एसिड इनसॉल्युबल पूल बोलते हैं या पार्ट बोलते हैं। एसिड
इनसॉल्युबल पूल, आपने जो भी लिया उसका बचा हुआ पार्ट, एसिड इनसॉल्युबल, वो सॉल्युबल होता ही नहीं उसमें। फिल्ट्रेट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, वो तो सॉल्युबल हो चुका है, वी कैन कॉल दिस एज एसिड सॉल्युबल पूल। क्या बोल सकते हैं इसको, एसिड सॉल्युबल पूल, राइट। जो फिल्ट्रेट है दैट गॉट डिसॉल्व्ड इन द एसिड, जो retentate है that did not get dissolved in the acid, acid insoluble pool, acid soluble pool, क्लियर है। यस, इससे हमें एक और चीज पता चली, ये जो डिसॉल्व हो गए हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, जो डिसॉल्व होके नीचे आए हैं उनकी साइज छोटी होगी या बड़ी होगी, सोच के बताना। साइज छोटी लगे होगी यहाँ पे अंदर नीचे जो आ जाएंगे उनकी, या बड़ी होगी, जल्दी बताओ, इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए, छोटी जल्दी। होगी। छोटी होगी बिल्कुल, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल। सिंस ये आपकी बॉडी का पार्ट है, लिविंग से रिलेटेड है, तो हम बायो फ्री में ऐड कर देंगे, वी विल ऐड द टर्म बायो फॉर फ्री, सो यू विल कॉल इट एज बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। क्या बोल सकते हैं इसको हम, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। नहीं समझ में आएगा जब भी, यू आर फ्री टू स्टॉप मी, ठीक है। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड एसिड इनसॉल्युबल बड़े बड़े होंगे तो हम उसको नाम दे देंगे मैक्रो मॉलिक्यूल, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। एक एक्सेप्शन है इसमें, दैट इज लिपिड्स, ठीक है। लिपिड आपका एक्चुअली क्या होता है, लिपिड की साइज छोटी है, लिपिड की साइज छोटी है लेकिन वो एसिड में डिसॉल्व नहीं होता, it doesn't get dissolved in the trichloroacetic acid. Since वो dissolve नहीं हो पाता, वो कहाँ पे, where will you get them, you will get them in the retentate। तो एक exception है, that is lipids। लिपिड साइज अगर देखोगे ना उनकी, तो उनकी साइज छोटी है, लेकिन since they don't get dissolved in the trichloroacetic acid, तो वो आपको retentate में मिलता है, एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में मिलता है, ठीक है। दैट इज द एक्सेप्शन, अदरवाइज जितने भी आपको मिलेंगे ना, सब बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स ही है, उनका साइज भी बड़ा है सच में, एक्सेप्ट लिपिड। लिपिड की साइज छोटी है, लेकिन सिंस इट इज इनसॉल्युबल इन दिस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, हमें वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिल जाता है। तो जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उसका साइज छोटा होता है। Since it is insoluble in this, we are getting them in acid insoluble pool. Is it clear? तो इससे हमें बहुत सारी चीजें पता चली। How did we analyze? समझ आया? लिविंग टिश्यू ले लो, ग्राइंड करो, एसिड में मिलाओ, स्लरी मिला, फिल्टर करो, फिल्टर करके जो नीचे चला गया दैट इज द सॉल्युबल फिल्टरेट बायोमाइक्रोमोलिक्यूल, जो ऊपर बच गया दैट इज द retentate एसिड इनसॉल्युबल बायोमैक्रोमोलिक्यूल। कूल? यस, चलो। So that was one thing. Now analyzing inorganic compound, क्या आपको इससे organic inorganic पता चला? Did you get to know about which one is organic molecule and which one is inorganic molecule? वो पता चला क्या इससे, इस प्रोसेस से? इस प्रोसेस से you got to know macro, micro, है ना, soluble, insoluble, filtrate, retentate। एक्चुअली आपको पता चला मैक्रोमोलिक्यूल एंड माइक्रोमोलिक्यूल के बारे में, बट डिड यू गेट टू नो अबाउट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यस और नो? क्या आपको उसके बारे में पता चला? नहीं पता चला। नहीं पता चला तो कुछ फिर और भी कुछ करना पड़ेगा, वी नीड टू डू फर्दर एनालिसिस, एनालाइजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो अब हम तीसरी चीज सीख रहे हैं, रिकॉल करो क्या सीखा अभी तक। पहला, अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी के कॉम्पोजिशन को देखा, एलिमेंटल एनालिसिस किया, तो वी हैव द सेम एलिमेंट्स। चांस हम में परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन है प्रेजेंट दोनों में। फिर दूसरी चीज क्या करी,
केमिकल कॉम्पोजिशन के लिए ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व किया एंड देन उसको फिल्टर करके देख लिया, सॉल्युबल इनसॉल्युबल बना लिया, माइक्रो मैक्रो बना लिया, खत्म। लिपिड उसका एक्सेप्शन था। तीसरी चीज जो हम सीख रहे हैं उसमें हम क्या सीख रहे हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, कि अगर मैं लिविंग हूं तो क्या मेरी बॉडी में कुछ इनऑर्गेनिक चीजें हैं या सिर्फ ऑर्गेनिक चीजें हैं, ये कैसे पता चलेगा। हाउ वी आर गोइंग टू गेट टू नो दिस, मुझे आंसर चाहिए, बताओ कैसे पता चलेगा। मैं ही बता देती हूँ, आज के बाद फिर दूसरी बार जब पूछूंगी तो आप बताना, ठीक है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, कोई लिविंग, वैसे ही कोई लिविंग टिश्यू ले लो, ठीक है, कोई लिविंग टिश्यू ले लो एंड उसको क्या करो, सुखा दो, पहले ड्राई कर दो, लेट इट ड्राई। क्यों, ताकि पानी चला जाए, है ना, लिविंग टिश्यू में पानी बहुत होगा ना। सो जस्ट लीव इट टू ड्राई। वंस इट गेट्स ड्राइड अप, जब एक बार ये सूख जाए तो इसको जला दो। क्या कर दो, जला दो, बर्न इट अप। जलाओगे तो बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, उड़ जाएंगी, हवा में मिक्स हो जाएंगी एंड कुछ चीजें होंगी जो आपको मिलेंगी। वॉट इज दैट विच यू आर गोइंग टू गेट, क्या बोलते हैं उसको, Ash. ऐश, है ना। जैसे कि ह्यूमन ट्रेडिशन में, ह्यूमन ट्रेडिशन बोल रही हूँ मैं, हिंदू कल्चर में वी बर्न द बॉडी, राइट। अगर हम बॉडी को बर्न करते हैं, हमें पता है कि बॉडी का बहुत सारा पार्ट चला जाएगा बर्न करने से, बट कुछ बॉडी का पार्ट विल रिमेन एज ऐश, राइट। तो आप बर्न जब कर दोगे तो कुछ चीजें तो एवापोरेट होकर एटमोस्फियर में चली जाएगी एंड रिमेनिंग थिंग you will get in the form of ash, right। तो जो ये ऐश है ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये ऐश ऑर्गेनिक आपको लगता है या इनऑर्गेनिक लगता है, बताओ। आइडियली आपको क्या लगता है, ऑर्गेनिक। Inorganic. ऐश इज इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक चीजें हैं जो बच जाती हैं, दिस इज इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। एंड जो चीजें एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स हो गई, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन वगैरह, दैट इज गोना बी ऑर्गेनिक पार्ट। ऑल राइट, तो हमें इनऑर्गेनिक चीजों के बारे में जानकारी लेनी थी, वी वांटेड टू नो अबाउट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐश मिल गया आपको एंड ऐश हैज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, आप इसकी पढ़ाई करो, स्टार्ट एनालाइजिंग इट, आपको मिलेगा सोडियम, पोटेशियम, calcium, magnesium, water, and maybe some other compounds. So all these are what? Inorganic constituents. जब आप ऐश को एनालाइज करोगे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। बाकी कार्बन वार्बन सब कहाँ चला गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑल दीज गॉट मिक्स्ड विद द एनवायरनमेंट, जल गए, सब उड़ गए, मिक्स हो गए हवा के साथ। The remaining one is inorganic part, ठीक है। ओके, तो इतना दिमाग में थोड़ा रखना है कि ये सब इनऑर्गेनिक चीजें हैं, सोडियम, पोटेशियम। बेसिकली आपका जो चॉन्स है ना, ये बहुत ही बड़ा क्या है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। अगर मैं सल्फर को छोड़ दूं तो ऐसे बोलते हैं बिग फोर, हमारे बॉडी में बिग फोर्स बोला जाता है कि 4 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, उसको हम बिग फोर से बोलते हैं। बिग फोर नाम है उनका, बिग फोर, बिग फोर एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। व्हाट आर द बिग फोर एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडी, आंसर क्या होगा आपका, व्हाट आर द बिग फोर एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडी, बिग फोर चॉन, बिग फोर एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. दे आर द बिग 4 एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडी. ठीक है. सो इस तरीके से हमने किसके बारे में सीखा? इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में सीखा. गॉट इट? 3 चीजें करी. अर्थ क्रस्ट लिविंग. सेकेंड, लिविंग को ही हमने साइज के अकॉर्डिंग, एसिड सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल, साइज के अकॉर्डिंग कर लिया. बायो माइक्रो, बायो मैक्रो. तीसरा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में सीखा. तो समझ में आया कि वी हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वी हैव इनऑर्गेनिक कंपाउंड. आवर बॉडी हैज बोथ ऑफ देम. ठीक है. चलो, तो इससे हमें पता चला कि बायोमॉलिक्यूल अगर कॉम्पोजिशन देखोगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग पता चला कि बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक होते हैं एंड इनऑर्गेनिक होते हैं. इनऑर्गेनिक आपको पता है, सोडियम, क्लोरीन, NaCl, CaCO3, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारी बॉडी में. ऑर्गेनिक क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, एंजाइम, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक है. जिसमें क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. जॉन, बिग 4. ठीक है. इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन होते ही हैं. इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड यू विल गेट कार्बन एंड हाइड्रोजन. अगर वो नहीं है, देन इट कांट बी ऑर्गेनिक. इट हैज टू हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन. एक और तरीका है टू डिफरेंशिएट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ठीक है. इट इज बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन. एक यहाँ लाइन लिखी है, सेल्यूलर पूल. सेल्यूलर पूल का मतलब क्या? हमारा सेल्यूलर पूल, आपके सेल में जो भी है, दैट इज द सेल्यूलर पूल. जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जितना फ्लूइड है, एवरीथिंग इज सेल्यूलर पूल. वह सेल्यूलर पूल हैज 2 components, organic cellular pool and inorganic cellular pool. उस सेलुलर पूल में ऑर्गेनिक चीजें हैं एंड इनऑर्गेनिक चीजें हैं. सेलुलर पूल का मतलब स्विमिंग पूल में पूरा पानी है, वैसे ही सेलुलर पूल का मतलब पूरे सेल के अंदर जो भी चीजें हैं, दैट इज द सेलुलर पूल. क्या है उसमें? बायोमॉलिक्यूल्स है. उस बायोमॉलिक्यूल्स का नेचर कैसा है? इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है. अब बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर वेट एंड सॉल्युबिलिटी, उसके साइज, वेट और सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग 2 तरह के हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो एंड माइक्रो. मैक्रो का ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, साइज ज्यादा है इसका, राइट? एक्सेप्ट लिपिड. मैंने आपको सिखाया ना, लिपिड एक एक्सेप्शन है. ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं. दे आर नॉट सॉल्युबल विद द एसिड. ठीक है. लेकिन लिपिड क्या है? इनकी साइज छोटी होती है, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है लिपिड का, बट इट इज नॉट सॉल्युबल, दैट इज वाई वो रेटेंटेट में है. माइक्रोमॉलिक्यूल साइज छोटी होगी, वेट कम होगा, और ये कहाँ मिलता है आपको? एसिड सॉल्युबल पार्ट. ठीक है. एग्जाम्पल सोचो मैक्रो का क्या है? जो बड़े बड़े होंगे. बड़े बड़े क्या होंगे? पॉलीसेकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ये सब बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं. पॉलीमर है, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर इनको बनाए हैं. आप जब खाना खाते हैं, आप पॉलीसेकेराइड्स खाते हैं. डाइजेशन करके उसको छोटा किया जाता है हमारी बॉडी में, है ना? जब प्रोटीन खाते हो, तो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ व्हाट? अमाइनो एसिड्स. हमारी बॉडी उसको तोड़ती है, तो वो जो टूटे हुए स्ट्रक्चर्स है ना, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, वो क्या होंगे? माइक्रोमॉलिक्यूल. प्रोटीन किससे बना है? अमाइनो एसिड से. अमाइनो एसिड छोटा, माइक्रोमॉलिक्यूल. पॉलीसेकेराइड्स किससे बना है? शुगर मॉलिक्यूल से, मोनोसेकेराइड से, शुगर से, ग्लूकोज से. तो शुगर क्या है? माइक्रोमॉलिक्यूल. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है? नाइट्रोजनस बेस.
शुगर एंड फॉस्फेट। तो तीनों जब ब्रेक कर दोगे वो छोटे हो जाएंगे, वो माइक्रोमोलिक्यूल होगा। वाटर, मिनरल, ये सब क्या होंगे? माइक्रोमोलिक्यूल होंगे। इज इट क्लियर? मैक्रो आपका पूरा कॉम्बिनेशन वाला स्ट्रक्चर, उसको जब आप छोटे छोटे यूनिट में उसके मोनोमर में तोड़ देते हो तो वो छोटे हो जाते हैं एंड दे आर माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द साइज, मॉलिक्यूलर वेट एंड सॉल्युबिलिटी। कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में हम बायोमोलिक्यूल्स को क्लासिफाई करते हैं। तो आपके सेल का जो पूल है, इट कैन हैव ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपके सेल का जो पूल है, साइज के अकॉर्डिंग, सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग बड़े हो सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल या छोटे हो सकते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? आर देयर एनी डाउट्स? लेट मी नो। कोई डाउट्स है? यस, नो? नो डाउट्स। ठीक है, तो थैंक you so much. That is all for today. All right. See you in the next class. Bye everyone. Bye, ma'am.